Good morning students. Today we are going to start the Riya's journey, that is the chapter number 6 and part 3. We have already seen now Riya, she is boarding to the, already she has boarded into the train and they have taken the seats, and now further what is the journey, how is the journey starts, we are going to see further, and we are going to read from the page number 43 what happens further in the Riya's journey. Okay, so let us read the textbook. Okay students, now open the page number 43. We have already seen that Riya has already reached to the station, railway station, and how his father is giving certain instruction. They met another family which was just near, sitting near to them. Now come to 43 page number. You can see there is a ticket collector. Yes. Now what does the ticket collector do? We are going to read that. Let us read here. After some time, the ticket collector came and checked our tickets to see if we were in our proper seats or not. Now, what does the ticket checker do? क्या करता है टिकट चेकर? टिकट चेकर आपके टिकट को चेक करता है, आपके नाम को चेक करता है, आप कौन सी जगह से बैठे हो, बोर्ड हुए हो, कौन सा स्टेशन है, आपकी उम्र, और आजकल आपने देखा होगा आधार कार्ड भी चेक किया जाता है कि आप वही हो, आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आप वही आदमी हो जो बैठा है या कोई दूसरा आदमी. तो आधार कार्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट along with your tickets. Now come here, which are the some of the question and answers. Madam has written here. Why did Riya's father has said to get in the train quietly? क्यों रिया के फादर ने कहा कि भाई धीरे धीरे चढ़िए ट्रेन में? Why we should do like this when we are traveling or when we are boarding to either train or bus or any other vehicle. So how you have to write? Riya's father has said to get in the train quietly because these are the points which madam has written. Let me read. Be careful getting on and off the train. There may be a gap between the train and platform. गैप होता है तो आपको बहुत ध्यान से चढ़ना होता है ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में. सेकेंड है ऑलवेज ओबे ऑल वार्निंग साइंस. वार्निंग साइंस क्या है? रेड है, ग्रीन है, क्या बोला जा रहा है स्पीकर में, माइक में. सो यू हैव टू फॉलो अकॉर्डिंगली. सो यू शुड फॉलो, ओबे ऑल द वार्निंग साइंस एंड सिग्नल्स. थर्ड पॉइंट, डोंट पुश एनीबडी व्हाइल बोर्डिंग इन द ट्रेन. जब आप बोर्ड कर रहे हो, चढ़ रहे हो, किसी को पुश मत करो, गिर जाएगा, लग जाएगी. ओके, तो दीज आर द पॉइंट्स. वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन दीज 3 पॉइंट्स यू पीपल राइट डाउन. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर एट द टाइम ऑफ जर्नी? टिकट चेकर को आप कैसे मालूम करोगे ये टिकट चेकर है? अ टिकट चेकर wears a black coat and black trousers. He asks passenger to show their tickets, also collects the fine from those who travel without ticket. Ticket checker क्या पहनता है? Black coat and black trouser. He asks passengers to show their tickets and also collects the fine. जो अगर किसी ने नहीं लिया टिकट तो उससे फाइन इकट्ठा करता है. Those who travel without ticket, जो बिना टिकट के चढ़ जाते हैं. होता है कि नहीं? बिल्कुल. So one should take the tickets while traveling the train. फिर यहाँ पर क्या लिखा है? Which details ticket checker checked in the ticket? क्या चेक करते हैं? Ask your teacher. So madam is giving you details. Details are, क्या देखता है, क्या पूछता है टिकट चेकर? नेम ऑफ द पैसेंजर, डेट, कब आप ट्रेवल कर रहे हो, बोर्डिंग स्टेशन, कहाँ से चढ़ रहे हो, बड़ौदा से, अहमदाबाद से, और आधार कार्ड भी आजकल चेक किया जाता है. सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट विच द टिकट चेकर चेक इन द टिकट. अब यहाँ पर देखो क्या है यहाँ पर. आफ्टर 1 hour the train stopped at one station. I saw it from the window. What was the station? Samkhiadi Junction was written on the station. I asked my father. Samkhiadi
जंक्शन आया था। जंक्शन मतलब जहाँ पर एक जगह से, एक स्टेशन से बहुत सारे अलग अलग जगह पे आप जा सकते हो। ओके, सो दैट इज, नाउ सी हियर what is written. Why, next page, why is the junction was written after the station name? क्यों junction लिखा था? Father explained to me that the station at which two or more railway tracks are separating is called junction. तो junction किसे कहते हैं? जहाँ पर वो स्टेशन को जहाँ पर two or more railway tracks are separate होते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम जंक्शन कहते हैं। फ्रॉम दिस स्टेशन टू रेलवे ट्रैक्स आर सेपरेटिंग ऑन द ट्रैक ऑन विच अवर ट्रेन इज रनिंग इज द वे टू अहमदाबाद एंड द अदर गोज टू पालनपुर। एक अहमदाबाद की तरफ जाएगा और दूसरा पालनपुर की तरफ। तो ये एक जंक्शन है जहां पर दो अलग अलग तरफ से ट्रेन आती है और दो अलग अलग तरफ जाती है। ट्रेन डिपार्टेड आफ्टर 2-3 minutes। 2-3 minutes डिपार्टेड मतलब वहां से चल दी। द टू ट्रैक्स सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। टू ट्रैक सेपरेट हो गए। फादर शोड इट टू मी फ्रॉम द विंडो। पापा ने मुझे बताया कि देखो यहाँ से सेपरेट हो रही है, एक स्टेशन से हम दूसरी जगह भी जा सकते हैं। तो दो रेलवे ट्रैक रिया के फादर ने बताया, ठीक है। ये देखो, टू ट्रैक्स सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। फिर आवर ट्रेन लेफ्ट दैट स्टेशन। आई वॉज ऑब्जर्विंग द व्यू आउटसाइड द विंडो। इट वॉज लुकिंग लाइक वाइट बेडशीट स्प्रेड अक्रॉस एन ओपन प्लेन अप टू फार अवे इन अ फुल मून लाइट। Father said that it is a small desert of Kutch and it is looking like white bed sheet because of white layer of salt in it. In this area, Agarias are harvesting salt by making salt dun. There we can also see very big heaps of salt. तो यहाँ पर आप देख सकते हो desert of Kutch, क्योंकि जो रिया का ट्रेन था उधर से जा रहा था, तो उसके पिताजी ने कहा कि देखो ये फुल मून डे है, तो आज हम क्या देख पा रहे हैं, रन ऑफ कच्छ, जहाँ पर बेडशीट, वाइट कलर की बेडशीट क्यों दिखाई दे रही है, वाइट बेडशीट दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट ऑफ कच्छ में किस चीज की खेती करते हैं, वाइट लेयर ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की। सॉल्ट कैसे बनता है, समुंदर के पानी से। समुंदर का पानी यहाँ पर आ जाता है मॉनसून सीजन में, ऊपर आ जाता है, फिर यहाँ पर मिट्टी पूरे दोनों साइड से, चारों साइड से इसमें मिट्टी मिट्टी लगा देते हैं, और ये समुंदर का, दरिया का पानी सूखता है, ड्राई हो जाता है इवोपरेशन से, और बाद में हमें सॉल्ट मिलता है। और ये कौन करते हैं, वहाँ पर जो लोग हैं बहुत मेहनत करते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, अगारियास। अगारियास जो हैं वहाँ पर सॉल्ट की खेती करते हैं, हम खेती कहते हैं, लेकिन वो दे आर वर्किंग फॉर द सॉल्ट इन द डेजर्ट ऑफ कच्छ। ओके, आप देख सकते हो नेट में भी इनके बहुत सारे पिक्चर मिलेंगे। दे आर पर्टिकुलरली वर्किंग फॉर द सॉल्ट इन द डेजर्ट ऑफ कच्छ, ठीक है। तो ये उसके पिताजी ने बताया कि भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा काम हो रहा है। अब आगे चल रही है ट्रेन। The train was moving fast. Something like a bridge was seen in a faint light of moon. There was light of vehicles seen on it while we were crossing the bridge. I asked my father, which is this bridge? ये कौन सा bridge है? This is Surajbari Bridge. Surajbari Bridge, he replied. किसने बोला? रिया के पापा ने। इट इज नोन एज द एंट्रेंस ऑफ कच्छ। जब आप कच्छ में जाओगे तो ये एंट्रेंस है। तो ये ट्रेन देखो ब्रिज के ऊपर से जा रही है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसने, रिया को कैसे मालूम चला, फेंट लाइट ऑफ मून, हल्की हल्की रोशनी मून में ये दिखाई दिया, लाइट ऑफ व्हीकल। तो ब्रिज का नाम क्या था, सूरजबारी ब्रिज, ठीक है, और वो एंट्रेंस था कच्छ का। ओके, यू कैन सी द पिक्चर। ओके, okay, now
He said that when this bridge was not there, all the trains of Ahmedabad used to go via Palanpur. That used to take much time. तो पहले जब ये ब्रिज नहीं था तो घूम के जाती थी ट्रेन अहमदाबाद के लिए। कैसे कैसे जाती थी? वाया पालनपुर। पालनपुर से उल्टा घूम के फिर अहमदाबाद पहुंचती थी। उसके बाद क्या है? इमीडिएटली आई आस्क्ड माय फादर, वी हैड सीन 2 सेपरेट रेलवे ट्रैक्स बिफोर दैट वाज द वे टू पालनपुर, राइट? फादर सेड यस, फ्रॉम द रूट ओनली ट्रेन वाज गोइंग। तो तभी मुझे याद आया कि अच्छा, पापा ने अभी मुझे 2 सेपरेट रेलवे ट्रैक दिखाए थे। तो रिया ने पूछा कि पापा, पहले हम लोग फिर पालनपुर ही जाते थे पहले जो भी ट्रेन यहाँ से जाती थी? तो पिताजी ने कहा बिल्कुल सही, पालनपुर पहले जाती थी और फिर जिसमें हम, द फादर सेड यस, उसी से पहले ट्रेन जाती थी, लेकिन अब हम उधर से नहीं जाते। इट वॉज 11 एट नाइट। कितने बज गए थे? 11। सो फादर टोल्ड अस टू स्लीप। पापा ने कहा भी सो जाओ। मदर स्प्रेड अवर बेडशीट ऑन अवर सीट। ऑल पैसेंजर्स वेर ऑल्सो गोइंग टू स्लीप। देयर वॉज टॉयलेट फैसिलिटी इन द ट्रेन। आई वेंट टू टॉयलेट विथ माई मदर एंड देन स्लेप्ट। तो 11 बज गए थे। पिताजी ने कहा चलो अभी सो जाते हैं। तो मम्मी ने क्या किया? माँ ने बेडशीट हमारे सीट में डाली। सारे पैसेंजर भी सो रहे थे या सोने को तैयार कर रहे थे सोने के लिए। देयर वॉज टॉयलेट फैसिलिटी भी होती है ना ट्रेन में, वॉशरूम, और अब हमको वॉशरूम साफ सुथरा रखना चाहिए कहीं पर भी हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, स्टेशन में हो। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि ट्रेन की फैसिलिटी है तो हमें वहाँ पर भी सफाई होनी चाहिए। आई वेंट टू टॉयलेट। मैं अपने पेरेंट के साथ, माँ के साथ गई। तो यहाँ तक हमने ये बात कही है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, हैव यू एवर ट्रेवल बाय ट्रेन? इफ यस, देन फ्रॉम वेयर एंड अप टू विच प्लेस? अगर कभी भी आप ट्रेन में गए हो, कहाँ तक गए हो, कहाँ से कहाँ तक, यू हैव टू राइट। सो दिस इज योर होमवर्क। आपका ये होमवर्क है, क्योंकि सब ने ट्रेन जर्नी अलग अलग जगह पे की है। तो आपको जगह का नाम लिखना है, जैसे बड़ौदा तो अहमदाबाद, बड़ौदा तो सूरत, ठीक है? ये वाला विच फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड इन अ ट्रेन, राइट इन डिटेल्स। क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं ट्रेन में? वॉशरूम की फैसिलिटीज होती हैं, बैठने की फैसिलिटीज होती है, लाइट एंड फैन की फैसिलिटीज होती है कि नहीं? यस, होती है। तो ये चीज हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या होती है? वी हैव व्हाट वी गो, देयर इज light and fan in the coach of train. फिर toilets facility is also there. पैंट्री मतलब खाने की सुविधा है ना, फूड फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, आज हमने रिया की जर्नी देखी और कैसे देखा कि वो ट्रेन आगे जा रही थी, टिकट चेकर आया, टिकट चेकर ने टिकट में क्या क्या देखा, फिर वो लोग कौन से एक जंक्शन में, कौन सा जंक्शन था, द जंक्शन नेम वाज समखियादी जंक्शन, जहाँ से पहले पालनपुर और अहमदाबाद में किस तरह से डिवीजन होता था। फिर जब ट्रेन आगे चली तो पिताजी ने कहा कि जंक्शन किसे कहते हैं, क्योंकि पहले ये जंक्शन नहीं था तो ट्रेन पूरी घूम के जाती थी, है ना, वहां से घूम के जाती थी पालनपुर और फिर पहुंचती थी। जब ट्रेन धीरे धीरे जा रही थी तब उन्हें क्या दिखाई दिया? रन ऑफ कच्छ में उसने एक खास चीज देखी। क्या खास चीज थी? कि वहां पर सॉल्ट की हार्वेस्टिंग मतलब खेती, तो सॉल्ट की हार्वेस्टिंग किस तरह से की जाती है, जो मैडम ने अभी आपको बताया। वहां पर जो लोग स्पेशली खेती करते हैं, सॉल्ट की खेती करते हैं, दे आर नोन एज
Agarias, they do really work hard. They work hard so that they can get the salt. Particularly it starts from the monsoon season. August ऐसे सितंबर में पानी पूरा भर जाता है, खेत इतने बड़े बड़े चौड़े चौड़े खेत बनाए, चारों तरफ से मिट्टी वो ऊंचा ऊंचा कर देते हैं, तो पानी अंदर आ जाएगा. When the water will go inside, कौन सा, दरिया का पानी, बारिश का पानी दोनों मिक्स हो जाएगा. फिर इवोपरेशन होता है. इवोपरेशन, इट स्टार्ट्स ड्राइंग, द वाटर गेट इवोपरेटेड एंड व्हाट इज लेफ्ट आउट, सॉल्ट. दैट सॉल्ट इज क्लीन्ड, साफ किया जाता है. साफ करके उन्हें कारखानों में लिया जाता है, वहां पर पैकिंग करके लोड करके फिर हमें घर घर तक मिलता है. व्हाट वी गेट, सॉल्ट, विच इज वेरी एसेंशियल. बिना सॉल्ट के तो हमें नहीं चल सकता, हर खाने में जरूरी है. ठीक है. फिर हमने क्या देखा, ब्रिज. ट्रेन कहां पर जा रही थी, एक ब्रिज के ऊपर से जा रही थी, विच वॉज द एंट्रेंस ऑफ द कच्छ. सो हिज फादर टोल्ड दिस नेम इज सूरजबारी ब्रिज. सूरजबारी ब्रिज जो एंट्रेंस ऑफ कच्छ है. और धीरे धीरे फिर ब्रिज से वो लोग गए और पिताजी ने कहा अभी रात के 11 बज गए, प्लीज नाउ यू टेक अ स्लीप, एंड देन दे हैव टेकन स्लीप. आगे की कहानी में क्या होता है, रिया और क्या क्या देखती है, क्या क्या डायरी में नोट करती है, जो मैम ने आपको सिखाया है डायरी में नोट करना चाहिए. जो भी इवेंट्स, छोटी छोटी चीज दिन में होते हैं, तो रिया क्या इवेंट नोट करती है, we are going to see in our next class. Whichever the question answer madam has told you, please write down and do a single. एक होमवर्क दिया है, वो आप लिखना, कहाँ से आप कहाँ तक गए हो, स्टेशन का नाम लिखना है. So hope you like this and lecture. Please read it well and we are going to meet in our next class. Thank you.